Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. Today I have prepared a lesson on coordinate geometry for class 9 CBSE. Let's start. We have been using the real number line to locate the position of a point. But there are situations when we use of one real number line is not sufficient and we need more than one line to find the position of a point. सपोज एक हमारे पास शीट है, हमने उसमें एक पॉइंट लगा दिया है और हम वो कहते हैं कि पॉइंट राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है, ऊपर है, नीचे, तो हम उससे उस पॉइंट की पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। या हमने कह दिया कि वो पॉइंट राइट एज से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। राइट एज से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, इट्स ओके, मगर कितना ऊपर नीचे वो हम नहीं बता पाते। अगर इसकी जगह हम कहें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट एक शीट पर राइट एज से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और ऊपर वाली एज से 9 सेंटीमीटर नीचे है, तो हम उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि वो पॉइंट शीट पर कहाँ है। सो टू फाइंड द exact position of a point in a plane, we need information of its distance from two places. Thus, the position of a point in a plane can be represented with the help of two perpendicular lines. From this idea, an important branch of mathematics come to existence, and this branch is called coordinate geometry. René Descartes, the French mathematician of 17th century, applied algebra to geometry. He realized that a real line or a curve in a plane can be represented by an algebraic equations. As a result, a new branch of mathematics called coordinate geometry came into existence, and he is known as the father of the coordinate geometry. He introduced the point representation in the plane by ordered pairs of real number, and these ordered pairs are called coordinates of points. Now, what is Cartesian plane? First, we learn about Cartesian plane. In a real number system, we associated real numbers to a point on a number line. On a number line, numbers are represented by marking points at an equal distance from a fixed point. Point mark on the right side of the fixed point represent the positive number. Suppose real number line में हम यही करते हैं. This is a number line and O is a fixed point, and right side from O 1, 2, 3, 4. So these are positive sides, and O के left side में -1, -2, -3, -4, इधर सारे के सारे हम लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स पॉइंट करते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? ओरिजिन, एंड दिस रिप्रेजेंट द नंबर 0. सो इस तरह से हम नंबर लाइन में हम कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. वी हैव already studied a detail of the points on a number line in our earlier classes. Now, in coordinate geometry, we adopt the same method in a plane, except that a point is labeled by an ordered pair of real number. So, क्या करते हैं? First, we take two lines, one horizontal and other one is vertical. And horizontal and vertical lines represent the x-axis and y-axis. So horizontal line, this one, horizontal line, this shows x-axis. जहाँ पर दोनों हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं वो कहलाता है ओरिजिन, एंड हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है एक्स एक्सेस. तो इसको हम डिनोट करते हैं एक्स ओ एक्स डैश,
एंड वर्टिकल लाइन को हम डिनोट करते हैं वाई ओ वाई डैश। सो एक्स एक्सिस और हमारे पास वाई एक्सिस बन जाते हैं। तो ओ से जो राइट साइड में है एक्स एक्सिस पर, ये कहलाते हैं पॉजिटिव नंबर्स, एंड ओ से लेफ्ट साइड में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेंगे नेगेटिव नंबर्स, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह वर्टिकल लाइन में अप साइड ऊपर की तरफ वाई के पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, एंड ओ से नीचे वर्टिकल लाइन में ओ से नीचे की तरफ वाई के लिए नेगेटिव नंबर्स आएंगे। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। नाउ नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? तो उसको फाइंड करने के लिए हमने ये एक प्लेन बना लिया, कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, एंड वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। हम ये यहाँ पर एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। जब हमने ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो ये कितना आया? 3। एंड इसी तरह से ये पी एल ड्रॉ किया। इसी तरह से पी एम हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट से, तो ये वाई एक्सिस पे पी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर एल कितना आ रहा है? पी 3 आ रहा है, एंड एम 2। इट मीन्स पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 3 एंड 2। क्लियर? तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है मीन्स ओ एल हमारा कितना आ रहा है? 3। तो ओ एल क्या कहलाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। सो ओ एल इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ओ एल इज एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ओ एम इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर? सो वाई ओ एम वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा। क्लियर? सो इन दिस केस वी हैव एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 2. So here when we write in ordered pair, we always write x coordinate first and the second entry is of y coordinate. As we fix order of x and y, we say that coordinate geometry points are represented by ordered pair of real number. So इस तरह से अगर हम इसको शो करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ordered pair, ordered pairs of real number. Corresponding to each ordered pair, the corresponds a unique point in a plane. मतलब 3 और 2 बस यही एक पॉइंट होगा, इसके अलावा कोई नहीं पॉइंट होगा, एक यूनिक पॉइंट शो करता है ये ऑर्डर्ड पेयर। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट इन अ प्लेन दे आर कॉरस्पॉन्डिंग अ यूनिक ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह से जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर एक यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो उसके लिए एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आएगा। एंड हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू
ordered pair y x मीन्स जैसे ये हमारा P पॉइंट है, ये 3 2 है, ये 2 3 नहीं हो सकता, ये हमेशा 3 2 ही होगा। 2 3 कहाँ आएगा? 2 और 3 मतलब 2 पॉइंट कहाँ है एक्स एक्सिस का? दिस वन इज सपोज ए, तो 2 यहाँ पर आएगा और 3 वाई का 3 इस पॉइंट पर, तो हमारा 2 और 3 कहाँ पर आएगा? दिस वन, तो दिस वन इज 2 and 3। क्लियर? तो इसी जो हमने बोला कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स, तो वो नहीं हो सकता, दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे। नाउ हियर इज एग्जाम्पल फर्स्ट, यूजिंग फिगर राइट द फॉलोइंग, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सो बी इज पॉइंट, बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर। तो फॉर अ पॉइंट बी यहाँ लिख देते हैं, फॉर अ पॉइंट बी, फॉर द पॉइंट बी x coordinate equal to -5 and y coordinate equal to 2। सो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? coordinates of the पॉइंट B कितना हो जाएगा? -5 and 2। क्लियर? नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, पॉइंट C इज दिस, तो पॉइंट C पे, C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो C के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे -2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ B, coordinates of the point C 2 and -2, and third one C point, the point identified by the coordinate -5 and -3। so -5 and -3, तो x एक्सिस पे -5 कौन सा पॉइंट है? दिस वन, एंड y एक्सिस पे -3 कौन सा है? दिस वन। दोनों से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड दिस पॉइंट मीन्स डी पॉइंट, डी पॉइंट इज -5 एंड -3, तो कौन सा आ जाएगा? डी पॉइंट। तो डी पॉइंट शो करेगा हमारा -5 एंड -3। सो सी डी इज द point identified by the coordinates -5 and -3। क्लियर? इस तरह से हम इनको बता सकते हैं। नाउ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट बताने के लिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। सो एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सो जो 4 पार्ट बने वो क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट। द फर्स्ट क्वाड्रेंट both OX and OY indicate positive direction. So this one is called first quadrant, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इसमें दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर हम किसी P पॉइंट की बात करेंगे इस केस में,
तो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर OX और OY आ रहे हैं इस पे, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। एंड दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट अगर हम इस पे किसी P पॉइंट की बात करेंगे, सो इन दिस केस y, इसमें O x डैश आ रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड y कितना, y क्या होगा, पॉजिटिव। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इन दिस केस अगर सपोज कोई P पॉइंट है तो x क्वाड्रेंट भी x कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा एंड y वाला भी नेगेटिव होगा। दोनों ही इसमें नेगेटिव आएंगे। इसमें देखिए दोनों ही OX डैश आ रहा है और OY डैश आ रहा है, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इसमें अगर कोई P पॉइंट होगा तो यहाँ देखिए कि x तो पॉजिटिव आएगा एंड y नेगेटिव। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होंगे, 4 होंगे। चारों में x और y की वैल्यू अलग अलग है, तो जिस जगह जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि x और y क्या होगा। जैसे सपोज फर्स्ट वाले में हमेशा जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो किस तरह से होंगे, 3, 4 एंड लाइक दिस। या अगर x की टर्म में यहाँ लिखें तो यहाँ पर होंगे XY, यहाँ पर होगा सेकंड में -XY, एंड फोर्थ वाले में -X -Y, थर्ड वाले में, एंड फोर्थ वाले में X एंड Y माइनस। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट coordinate of coordinates of the origin क्या है, O, coordinate of origin are क्या होगा, 0 0। clear? Now example number second, in which quadrant or on which axis do each of the points lie? So in this case first one is -2 and 4, -2 and 4। अब -2 and 4 ये हमने ड्रॉ कर लिया सर, ये हमारे पास आ गया x डैश, x o x डैश, एंड दिस वन इज y o y डैश। इस वाले केस में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, फर्स्ट वाले केस में पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। इसमें x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड वाले में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। क्लियर? सो -2 एंड 4, -2 एंड 4 कितना किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस वन। तो ये किस में आएगा, सेकंड में। -2 4 lies in the second quadrant. Second one 3 and -1, मतलब x प्लस का है, y माइनस का है, तो दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो 3 and -1 lies in the fourth quadrant. Third one -1 0, -1 and 0, -1 and 0। इसका मतलब माइनस कहाँ पर आ रहा है, x का, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और 0, तो 0 x एक्सिस पे आएगा। सो -1 0 लाइज ऑन o x डैश। क्लियर? फोर्थ वन -3 -5, both are negative, x and y both are negative, so -3 -5 इस वाले में आएगा, थर्ड में। सो -3 -5 lies in the third quadrant.
क्लियर? इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे. नाउ नेक्स्ट वन, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन. अभी किसी प्लेन में पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं. तो अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, सपोज हमें पॉइंट दिया हुआ है 3, 2, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है और हमें इसको प्लॉट करना है. तो सबसे पहले हम दो एक्सेस बना लेंगे परपेंडिकुलर. तो दिस वन इज एक्स ओ एक्स डैश एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश. फर्स्ट हमने ये किया, परपेंडिकुलर ले लिया. उसके बाद चूज अ सुटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑफ लेंथ. सो टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. सो दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3. यहाँ ओ के लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव होगा. इसी तरह से ओ के ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई होगा 1 2 3 एंड नीचे की तरफ माइनस वाई 1 -2 एंड -3. नाउ अब हमें क्या करना है, हमें 3 और 4 शो करना है. तो हमने 3 एक पॉइंट लिया. 3 कहाँ से होगा, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 3 है तो कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट, ये 3 आ गया इस पे. इसको हमने सपोज किया दिस इज पॉइंट ए एंड 2 ये वाला पॉइंट आ गया, इसको हमने ले लिया पॉइंट बी. अब क्या किया कि दोनों से हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. तो क्या होगा कि यहाँ से 3 से हमने इस पे ओ एक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. इसी तरह से ओ वाई से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड ये यहाँ पर इस पॉइंट पे मीट करा. इट मीन्स दिस इज पॉइंट पी एंड इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 एंड 2. तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को प्लेन में शो कर सकते हैं. तो ये हमारा पॉइंट हो गया 3 एंड 2. क्लियर? नाउ एग्जाम्पल नंबर 3. प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन. सो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस दिया हुआ है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश. ये सारे के सारे हम एक ग्राफ कॉपी आती है उसमें प्लॉट करेंगे और ग्राफ में जो एक बड़ा चेक होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. तो यहाँ पर हमने स्केल यूज़ करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. तो जो वो 1 सेंटीमीटर होता है हम उसको 1 यूनिट ले लेंगे. तो 1 2 3 4 इसी तरह से -1 -2 -3 -4 एंड 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. इस तरह से हम ये सारे के सारे एक बार इसको प्लॉट कर लेंगे. नाउ फर्स्ट हमें क्या लेना है, 3 एंड 4. 3 एंड 4 हमें प्लॉट करना है. तो 3 एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड 4 ऑल्सो पॉजिटिव वाई एक्सिस में. सो 3 एंड 4. तो 3 ये है हमारे पास एंड 4 इधर. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक यहाँ से ड्रॉ किया. सो दिस पॉइंट P, दिस इज 3 एंड 4. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट वन ए जो होगा 3 एंड 4. तो द पॉइंट 3 and 4 lies in the first quadrant. Therefore, point P represent the point 3 4. Clear? Now B is
0 and minus 3. So 0 and minus 3. Minus 3 is this one. वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ, क्योंकि y एक्सिस है, तो सो दिस वन, एंड दिस इज q. लेट्स राइट q पॉइंट, एंड दिस इज 0 minus 3. So the point 0 minus 3 lies on OY axis, or OY dash axis. Clear? And point Q represents the point ज़ीरो माइनस 3. क्लियर? तो ये होगा नेक्स्ट वन सी 2n minus 2, एंड 2n minus 2 कहाँ आएगा? दिस वन इज 2 ओ एक्स एक्सिस पे और -2 ओ वाई एक्सिस पे. सो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, एंड दिस इज पॉइंट आर, एंड आर पॉइंट कितना होगा? 2n minus 2. सो the point 2n minus 2 lies in the fourth quadrant. And therefore point R represents the point 2n minus 2. तो इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं. ये सारे के सारे हम बनाते हैं ग्राफ कॉपी में. क्लियर? सो इस अच्छी तरह से इसको कर लीजिएगा. ये आगे वाली क्लासेस में भी आपके बहुत काम आएंगे. होप यू एंजॉयड the lesson today. If you have any problem or doubts related to this topic, please comment below. I will try to respond to each one of your questions. I will be uploading next video soon. Once again, please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos. Thank you.